Hello, dear champions. My name is Naveen Kumar, and you are watching Sine Square classes. Okay, so in this video, we are going to cover trigonometry ratio angle table in a short and sweet and exercise 8.2 also. So, are you ready, all of you? Yes. And one more thing, if you are new on this channel, first of all, subscribe this one and share with your friends and family members. And if you did all these things, so come on, all of you. Okay, listen. So we are going to study about trigonometry ratio of angle table and how can we make the table very easily without any rectification. Okay, so listen, the very first thing that we have to find out the value of sine 0 degrees value. तो आपको कुछ नहीं करना, स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, काउंटिंग आती है. ओके, काउंटिंग नहीं मीन्स होल नंबर्स पता है. ओके, सबसे पहले आप लिखिए 0. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट 1. एक के बाद क्या था, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 एंड अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन ऑल दीज नंबर्स. इन सभी पे आप स्क्वायर रूट लगा दीजिए. स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट. Yes or no? And divide all these numbers by 2. Yes. So divide by 2, divide by 2, divide by 2, divide by 2 and divide by 2. Are you understand, all of you? Okay. Listen, as we all know that square root of 0 will be 0. 0 का square root क्या होता है? 0. Yes or no? Okay. So we can say square root of 0 is 0. And if we will divide 0 by 2, then what will we get? We get 0. It means 0 divided by 2, 0. तो यहां आपके पास क्या आ गया? साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 0. एज यू ऑल नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 1 विल बी 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1. Yes or no? Yes. So square root of 1 will be 1. So it means square root of will be 1 और it means ये है कि sin 30 की वैल्यू क्या आ गई? 1/2. Yes or no? Here sin 45 means आपके पास जो 2 है, 2 can be expressed like √2 multiply by √2. If √2 multiply by √2, then what will we get? 2. √3 multiply by √3, 3. √4 multiply by √4, 4. √5 multiply by √5, 5. Same as √2 can be expressed in the form of √2 upon √2 into √2. Yes or no? Yes. So √2 1 जा √2, √2 1 जा √2. So what we have now? ऊपर आपके पास न्यूमरेटर में क्या आ गया? 1. तो इट मींस आपके पास जो न्यूमरेटर में जो वैल्यू आई है, इट इज 1 and √2 बन जा √2. So what is the value of sine 45 degree? The value of sine 45 degree is 1 by √2. Next, as you all know that it is not possible to find out the square root of 3. 3 का square root exactly find out करना possible नहीं है because it is an irrational number. So 3 का कोई square root नहीं होता. So we will write this number same as square root of 3 by 2. And as you all know that what will be the square root of 4? क्या? हाँ, 4 का square root होगा 2 and 2 divided by 2 will be 1. क्या जाएगा? 1. So we can say square sin 90 की वैल्यू क्या होगी? 1. समझ में आया? बिना कुछ किए सबसे पहले आपने क्या किया? 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइड square, apply square root on this all number. So square root, square root, square root, square root, square root. Yes or no? 0 का स्क्वायर रूट 0 डिवाइडेड बाई 2, 0. 1 का स्क्वायर रूट 1 डिवाइडेड बाई 2, 1/2. 2 का स्क्वायर रूट अपॉन 2. 2 कैन बी एक्सप्रेस √2 into √2. So √2 से √2 कैंसिल हो गया and sin 45 will be 1/√2. 3 का स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल नहीं है. So √3/2 and square root of 4/2. Square root of 4 will be 2 and 2/2 is 1. So आपके पास बिना रेक्टिफिकेशन के साइन के सभी एंगल्स की वैल्यू आ चुकी है. Yes or no? Okay. Now what we have to do? Just you have to reverse all these values. Means आपने जो वैल्यूज लिखी हैं आप इनका रिवर्स कर दीजिए. क्या कर दीजिए? रिवर्स. cos theta will be. So what is in the last? Means sin 90. So just we have to write only in the first one. Next √3/2. Next 1/√2. Next 1/2. Next 0.
सो मीन्स आपके पास बिना कुछ किए साइन की वैल्यू आ गई है और कोस की वैल्यू आ गई है. So yes or no? It means we can say cos 0 will be 1, cos 30 will be root 3 by 2, cos 45 will be 1 by root 2, cos 60 will be 1 by 2 and cos 90 will be 0. So yes or no? Okay. In the last video we studied that the tan theta's formula will be sin theta upon cos theta. कि अगर आप sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा. Yes or no? Yes. तो इट मींस अगर आप ये sin की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, cos की, तो sin की वैल्यू को cos की वैल्यू से डिवाइड करोगे तो किसकी वैल्यू आएगी, tan की. Yes or no? Yes. So 0 divided by 1, 0 divided by 1, what will we get? 0. Yes or no? 1 by 2 divided by root 2, 1 by 2 divided by root 3 by 2. Yes or no? So 2 से 2 क्या हो गया, cancel out. What we have now, 1 by root 3 means what will be the value of sin tan 30 degree, 1 by root 3. And next 1 by root 2 divided by 1 root 2 क्या आएगा, 1 by root 2 को अगर आप 1 by root 2 से डिवाइड कर दोगे, so what will we get, 1. It means tan 45 will be 1. In the next sin divided by cos, so 2 से 2 क्या हो जाएगा, cancel and root 3 by 1 और root 3 by 1 is 1. And whenever we divide 1 divided by 0, 1 को किससे डिवाइड करोगे, 0 से, what will we get, no define. हाँ, not define. Yes or no? ओके. सो आपने बिना कुछ किए साइन की वैल्यूज निकाल ली, कोस की, tan की. Yes or no? Now what we have to do, as you all know that sin theta is the reciprocal of cosec theta and cosec theta is the reciprocal of sin theta. Cos theta is the reciprocal of sec theta and sec theta is the reciprocal of cos theta. Cot theta is the reciprocal of tan theta and tan theta is the reciprocal of cot theta. आप चाहो वैसे कर सकते हो. हाँ देखिए, अगर आप चाहो तो tan का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कोट. तो जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा, जीरो का रेसिप्रोकल होगा, जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा, अभी इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 by 0 एंड 1 by 0 इज ऑल्सो नोन एज नॉट डिफाइंड. बोला सर समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, मैं हूं, समझो. अगर आपको रेसिप्रोकल नहीं करना है तो आपने जो tan की वैल्यूज लिखी है आप इनका रिवर्स कर दीजिए. क्या कर दीजिए, रिवर्स. सो व्हाट इज कमिंग इन द लास्ट, नॉट डिफाइंड. जस्ट यू हैव टू राइट इन द स्टार्टिंग नॉट डिफाइंड. So what is the last second value here, root 3. So root 3 and the last third value is 1, so 1 and the next 1 by root 3 and the next is 0. Yes or no? अरे साइन कोस tan कोट सब आ गया सर, सेक और कोसेक भी आएगा क्या, आएगा, मैं हूं, आएगा. कैसे? सो आपको पता है दैट cos theta is the reciprocal of sec theta. Yes or no? कि cos theta जो है उसका रेसिप्रोकल कौन होता है, sec theta and sec theta is the reciprocal of cos theta. तो आपके पास cos की जो भी वैल्यूज है आप उनका रेसिप्रोकल कर दीजिए. Yes or no? मींस मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि sec theta जो है वो क्या होता है, 1 upon cos theta. हाँ, कि अगर आप cos की जो भी वैल्यूज है उनका रेसिप्रोकल करोगे तो किसकी वैल्यू आएगी, sec की. बोला सर 1 का रेसिप्रोकल, अरे 1 का रेसिप्रोकल आप क्या लिखोगे, देखो 1 by 1 लिख सकते हो और इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे. सो 1 by 1, इट मींस 1 by 1 क्या होगा, 1. सो sec 0 डिग्री विल बी 1. व्हाट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ रूट 3 by 2. तो जो न्यूमरेटर है उसे तो क्या बना दीजिए, डिनोमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर है उसे क्या बना दीजिए, न्यूमरेटर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ sec 30 डिग्री. Next, what will be the reciprocal of 1 by root 2? So the reciprocal of root 2 by 1. Say yes or no? Root 2 divided by 1, what will you get? Root 2. Say yes or no? Okay. In the next, what is the reciprocal of 1 by 2? So 2 by 1. And 2 by 1 can be written in the form of 2 also. And next, what is the reciprocal of 0? In the last video, in the last angles value, we studied that zero's reciprocal will be 1 by 0 and 1 by 0 will be known as not defined. Yes or no? So not defined. Not defined. Next, sir, what will be the value of cosec also? So cosec theta is the reciprocal of sin theta, means cosec के values निकालने के लिए किसका reciprocal निकालना है, हाँ किसका, sin का. बोले reciprocal करते बोझ हो रहा है, कुछ नहीं करना, मैं हूं, जो values लिखी है आप उनका रिवर्स कर दीजिए.
से सो नो बोला सर सच में, हाँ सच में। देखिए नॉट डिफाइन आ रहा है तो स्टार्टिंग में क्या लिखिए, नॉट डिफाइन, say so no. And what is coming in the last second? 2, so it will be 2, and there will be root 2, 2 by root 3, and the next one is 1. So आपने बिना कुछ किए, बिना कुछ रेक्टिफिकेशन के आपने सारी वैल्यूज निकाल ली। So what will be the angle's value here? Sin 0 degree will be 0, sin 30 degree will be 1 by 2, sin 45 degree will be 1 by root 2, sin 60 degree will be root 3 by 2, and sin 90 degree will be 1. Cos की वैल्यू कैसे निकाली? रिवर्स, रिवर्स। So रिवर्स लास्ट में 1 आ रहा है, so cos 0 will be 1, cos 30 will be root 3 by 2, cos 45 will be 1 by root 2, cos 60 will be 1 by 2, cos 90 will be 0। बोले सर tan कैसे निकाला? अरे हमें पता है tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। कि sin की वैल्यूज को किससे डिवाइड कर दीजिए, cos की वैल्यू से। सर 0 को 1 से डिवाइड किया, 0, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, ऊपर 1 बचा, नीचे क्या बचा, रूट 3, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, 1 by 1, 1 by 1 इज ऑल्सो नोन एज 1, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, सो रूट 3 by 1, और रूट 3 by 1 को क्या लिख सकते हो, रूट 3, एंड 1 अपॉन 0 विल बी नॉट डिफाइंड। सर कोट थीटा, सर एक कोट थीटा जो है वो टेन थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल। बोलो सर नहीं, तो मैंने बोला रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल नहीं करना तो रेसिप्रोकल करते तो क्या आता, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 by 0, और 1 by 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। 1 by रूट 3 का रेसिप्रोकल रूट 3 by 1, और रूट 3 by 1 को क्या लिख सकते हो, रूट 3, 1 का रेसिप्रोकल 1, रूट 3 by 1 का रेसिप्रोकल 1 by रूट 3, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0, बिकॉज नॉट डिफाइंड इज एक्सप्रेस्ड 1 by 0, और 1 by 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0 by 1। बोला सर अभी तो बताया था कि रिवर्स कर दो, वही ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा अच्छा लगे वो करो। नेक्स्ट sec थीटा, sec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, से यस और नो। एंड सो आपने cos की जो भी वैल्यूज निकाली थी उनका रेसिप्रोकल करके कहां लिख दिया, यहाँ cosec थीटा। अरे cosec थीटा जो है ना वो sin थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो ये आपने सारी वैल्यूज बिना कुछ किए बहुत इजी मेथड में आपने सोल्व कर ली। अब अपन देखते हैं सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। Exercise 8.2, and the first question is that evaluate the following. So means just we have to find out the value of the first question. Evaluate means just we have to solve this one. Okay, in this question, first of all, what is the value of sin 60? This is the root 3 by 2. Say yes or no. Multiply cos 30 will be, cos 30 will be also root 3 by 2. Just you have to remember all the values on your fingers. That's why this is the main reason that trigonometry feels very difficult, because you don't aware about the values. So cos 30 will be root 3 by 2 plus cos 60 will be 1 by 2, and sin 30 will be also 1 by 2. So root 3 multiply by root 3, 3, yes, upon 2 to the 4 plus 1 into 1, 1 upon 2 to the 4. And what will be the LCM of this? LCM of this will be 4. 4 divided by 4, 1. 1 multiplied by 3, 3 plus 4 divided by 4, 1. 1 into 1, 1. Means 4 by 4. And the value of this question will be 1. Say so no? It is your answer. Sir, can we do this question by another method? Yes. Just you will study all the second method in the class 11th, and the method is that there is a formula which applies on this one. Formula क्या है, that मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, that sin a plus b, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। क्या सर 10th में है? नहीं है 10th में, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। सो लिसन, साइन ए, यहां पर जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू आपको यहां मिलेगी। देखो मिल रही है क्या, यहाँ 60 है तो यहाँ पर भी क्या है 60 से सुनो। यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है बी जो 30 है वही 30 यहाँ पे मिल रही होगी आपको, ये 30 यहाँ पर भी क्या आ रहा है 30। सो द फॉलोइंग पैटर्न कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ साइन ए प्लस बी। आप इस इतने बड़े को क्या लिख सकते हो, साइन ए प्लस बी। सो साइन की जगह साइन, and what is the value of a? The value of a is 60, and the value of b will be 30. 60 plus 30 will be sin 90. आप इसे क्या लिखोगे, sin 90, and as you all know that the value of sin 90 is 1. So ऐसे करोगे तब भी आपका आंसर क्या आना है 1.
Is there any problem? No? Okay. Move to the next question. Answer. In the next question, just we have given 2 tan square 45 degree means first of all we have to write 2 multiply by what is the value of tan 45? 1. It means 1 raised to the power 2 because there is a square on tan 45. Next plus what is the value of cos 30? Cos 30 will be root 3 by 2. So root 3 by 2 and we have to apply a square also on this number, on this value, minus sin square 60 means root 3 by 2 raised to the power. इफ आपको कुछ ऐसा दिख रहा हो कि सर ये वैल्यू इससे क्या हो रही है, कैंसिल आउट बिकॉज ये किसका है, प्लस का, और ये किसका है, माइनस का, कैंसिल. सो 1 का स्क्वायर 1, सो 2 इंटू 1 क्या होगा 2. इट इज योर आंसर. इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो. In this question, we have to find out the value of this one, and this is the very important question in the exercise 8.2. So, first of all, we will write the value of cos 45, and the value of cos 45 will be 1 by root 2. Yes or no? Upon what will be the value of sec 30? So, value of sec 30 will be cos 30 की जो value होती है उसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल. cos 30 की क्या होती है, अभी लिखा root 3 by 2. So, value of sec 30 will be 2 by root 3 plus वैल्यू ऑफ कोसेक 30 मींस sin 30 की जो वैल्यू है उसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल. सर sin 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू 1/2, उसका रेसिप्रोकल 2/. कोई डाउट है? नेक्स्ट मैं थोड़ा सा यही लिख रहा हूं इसको. ओके, 1/√2 की जगह 1/√2 अपॉन व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स. आप इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा √3. √3 डिवाइडेड बाई √3 1, 1 into 2 2 प्लस √3 divided by 1, √3 multiply by 2, 2 √3. Is there any doubt? अगर ऐसे कभी भी आपके पास कोई फॉर्म आए, रिमेंबर वन थिंग, सबसे ऊपर वाला जो मल्टीप्लाई होगा वो सबसे नीचे वाले से, और बीच वाले से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, बीच वाला किससे मल्टीप्लाई होगा, बीच वाले से. सो द नेक्स्ट स्टेप इज √3 multiply by 1. सो √3 अपॉन इस √2 को इस पूरे ब्रैकेट से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई. सो √2 multiply by 2 plus 2 √3. Yes or no? Is there any doubt? No sir. So अब यहां पे आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है. So we can write this form in the like √3 upon, यहां पर आपके पास पहले से क्या था, √2, और इन दोनों टर्म में क्या सेम दिख रहा है, 2. सो टेक इट कॉमन. आपने इसे बाहर ले लिया, यहां क्या बचेगा, 1 प्लस √3. कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, पक्का? तो ओके, अभी आप इस फॉर्म को ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो, √3 अपॉन 2 √2 एंड मल्टीप्लाई बाई, इससे चाहे पहले लिखो चाहे इसे बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है. सो √3 प्लस 1. कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होगा. एंड यू ऑल नो दैट वी कांट टेक द नेगेटिव वैल्यू एंड द स्क्वायर रूट इन द डिनोमिनेटर, कि आप डिनोमिनेटर में जो है ना तो नेगेटिव वैल्यू रख सकते हो ना ही स्क्वायर रूट रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर तो स्क्वायर रूट भी है और यहाँ पर तो नेगेटिव वैल्यू भी है. तो आपको इस स्क्वायर रूट को और इसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा. रैशनलाइजेशन करते कैसे हैं, तो इसका रैशनलाइजेशन करेंगे. रैशनलाइजेशन में होता क्या है कि इसको हटाने के लिए जहां पे प्लस है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस है तो प्लस वाले से. सर समझ में नहीं आया, देखो. सो वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाई दिस वन. आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो कैसे, √2, और इसका रैशनलाइजेशन होगा क्या, इसका होगा √3 माइनस 1 अपॉन √2 इंटू √3 माइनस 1. देखो अगर आप इसको इससे कैंसिल आउट करोगे तो वापस सेम यही रहना है आपके पास, कुछ चेंज होगा क्या, चेंज नहीं होगा. तो मींस अगर चेंज नहीं होगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ऊपर और नीचे इस नंबर से, सेम नंबर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई. बोले सर कैंसिल आउट कर दो, एक ही बात है, नंबर सेम ही रहना है, वैल्यू सेम ही रहनी है. हाँ, तो देखो आएगा क्या आपके पास, √3 इंटू √2 √6 क्या आएगा, √3 इंटू √2 मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस 1. yes or no? कोई डाउट है यहां तक? कोई डाउट नहीं होगा ना. √2 इंटू √2, तो √3 इंटू √3 अभी आपने देखा क्या होता है, 3. सो √2 इंटू √2 विल बी 2, और यहां पर पहले से क्या है, 2. सो ये √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2. a प्लस b इंटू a माइनस b. And as we all know that a plus b into a minus will be a square minus b square. So
यहां से आप देखोगे तो यहां से आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा कि ये जो √3 है, √3 इंटू √2, √6 इंटू √3 माइनस 1। नीचे आइए, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैं यहाँ एक्सप्रेस कर देता हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बोलिए देखो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 एंड माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, सो 3 माइनस 1 क्या आ गया, 2। सो आपके पास देखो, इसको अब इससे मल्टीप्लाई कीजिए, √6 इंटू √3 माइनस √6 इंटू 1, सो √6 अपॉन 4, 3 माइनस 1 2 एंड 4 2 जा 8। सो आपके पास ये आ गया। नेक्स्ट √6 इंटू 3, सो √18 माइनस √6 अपॉन 8। यस और नो? सो √18 जो है, आप चाहो तो इसे क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 अपॉन 8। एंड एज वी ऑल नो दैट 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3, सो 3√2 माइनस √6 बाई 8 आंसर। तो इसका मतलब इस वाले इवेल्यूट करने पर ये वैल्यू आएगी, और ये इसका क्या हो गया, आंसर। द शॉर्ट एंड स्वीट। Yes or no? Next, what we have in the next question, just we have to find out we have to evaluate this one. So इसको evaluate करोगे कैसे, sin 30 की वैल्यू क्या होगी, हाँ, sin 30 will be 1/2। सो आपने बोला सर sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1, एंड 1 को आप चाहो तो 1/1 भी लिख सकते हो, माइनस कोसेक 60। सर sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, सो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। यस, यू आर राइट, सो 2/√3 अपॉन सर sec 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, सो sec 30 की इसका रेसिप्रोकल 2/√3 प्लस सर cos 60 जो होता है वो होता है 1/2, सो प्लस 1/2 माइनस सॉरी प्लस सर tan 45 1 होता है, तो cot 45 भी क्या होगा 1, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1, सो 1/1। नेक्स्ट, टेक एलसीएम इन द न्यूमरेटर। सो आपको न्यूमरेटर में जो है एलसीएम लेना है, सो 2√3 विल बी द एलसीएम। से सो नो, ओके, 2√3 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा, √3 एंड √3 इंटू 1, √3 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 1, 2√3 एंड 2√3 मल्टीप्लाई बाई 1, 2√3 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई √3। देखो 2√3 को अगर आप √3 से क्या करोगे, डिवाइड, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, एंड द आंसर विल बी 2। तो ये जो 2 है, आप इस 2 को इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 2 2 जा 4। नेक्स्ट अपॉन, अब आप ये जो नीचे है इसका भी क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। सो इसका एलसीएम भी क्या आएगा, √2 √3, 1 का एलसीएम क्या आएगा, 2√3, 2√3 को √3 से डिवाइड करोगे तो √3 से √3 कैंसिल, 2 इंटू 2 4, सो 4 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 2, √3 इंटू 1, √3 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 1, 2√3 इंटू 1, 2√3। सो अभी आप दिख रहे होंगे सर कि 2√3 से कौन कैंसिल आउट हो रहा है, यस 2√3 कैंसिल आउट हो रहा है। और सर ये क्या है, ये 1√3 है, तो 1√3 प्लस 2√3, 3√3 क्या आ जाएगा, 3√3 माइनस 4 अपॉन सर 2√3 प्लस 1√3 क्या होगा, 3√3, यस 3√3 और प्लस 4। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ये समझ में नहीं आया हो कि सर इनको ऐड कैसे कर दिया, तो उनके लिए भी देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं कि यहाँ पे जो कॉमन है इन दोनों टर्म्स में क्या सेम आ रहा है, √3, तो आप यहाँ से √3 कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर क्या बच गया 2 माइनस 4 अपॉन, यहाँ पर देखो आप नीचे देखिए कि यहाँ पर क्या है 4 प्लस, इसमें भी √3 कॉमन आ रहा है, इसमें भी √3 कॉमन आ रहा है, तो √3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से क्या बच गया 1 प्लस 2, तो देखो 2 प्लस 1 3 और 3√3 माइनस 4, यहां से देखिए 2 प्लस 1 3 एंड 3 के मल्टीप्लाई में √3, सो 3√3 और नीचे क्या है +4। फिफ्थ सब पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। सो इन दिस क्वेश्चन 5, सबसे पहले देखिए आप 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 एंड
sin square 30 plus cos square 30. It is an identity and the identity is that sin square theta plus cos square theta equals to always 1. मीन्स अगर इनका एंगल यहाँ सेम है तो इनकी जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी 1 होगी। तो ये देखिए आपके पास जो है वो क्या है 5 इंटू कोस 60 की वैल्यू 1/2 और उसका स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 की वैल्यू 2/√3 और उसका स्क्वायर माइनस 1045 की वैल्यू और उसका स्क्वायर बाय 1। इसके नीचे क्या आ गया 1। सो 5 इंटू 1 रेज टू द पावर 2 1 2 raised to the power 2 4 plus 4 into 2 raised to the power 2 4 root 3 raised to the power 2 3 minus 1 raised to the power 2 1 और डिवाइड बाई 1 करोगे तो यही आएगा। शेष हो नो सो 5 into 1 5/4 plus 4 4 जा 16/3 minus 1/1। What will be the LCM? And the LCM will be 12. 12 divided by 4, 3 and 5 3s are 15 plus 12 divided by 3, 4, 16 4 जा बोलो 16 4 जा 64 शेष हो नो minus 12 divided by 1, 12, 12 into 1, 12. So 15 minus 12, 15 minus 12 will be 3 and 64 plus 3 क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है सो 64 विल प्लस 3 अपॉन 12 मींस क्या आएगा 67 अपॉन 12 विल बी द करेक्ट आंसर और ये आपका क्या होगा एंड वन मोर थिंग इन द लास्ट मींस फोर्थ सब पार्ट में अपन ने क्या किया अपन ने केवल यहां तक करके छोड़ दिया था 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 मींस अपन ने इसको आगे सोल्व नहीं किया एंड we know that we can't take square root in the denominator so आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा और मैं भूल गया गलती से मुझे लगा कि यही तक आंसर होगा सो नेक्स्ट सो अब आप देखना इसका आप क्या करोगे रेशनलाइजेशन और रेशनलाइजेशन होता क्या है कि अगर यहाँ प्लस है तो माइनस यहाँ माइनस है तो प्लस सो वी विल मल्टीप्लाई दिस ये मैं थर्ड का फोर्थ जो क्वेश्चन था उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर आप बुक वाला आंसर मैच करना चाहते हो तो 3√3 माइनस 4 से आप ऊपर नीचे क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई 3√3 माइनस 4 इसे क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं रेशनलाइजेशन ठीक है और ये कौन सा है क्वेश्चन नंबर 4 तो देखिए आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो यहां देखिए ऊपर क्या बन गया इधर भी 3√3 माइनस 4 इधर भी 3√3 माइनस 4 तो आपके पास क्या आ गया 3√3 माइनस 4 रेज टू द पावर 2 मींस दोनों पावर जो है इनका बेस सेम है और बेस सेम है दोनों मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड सो 1 + 1 विल बी 2 तो यहां देखिए आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सुनो ओके नेक्स्ट आप देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर सो लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी 2ab से सुनो ये आएगा अपॉन नीचे 3√3 का देखो 3 का स्क्वायर 9 इंटू √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16 सो देखो 3√3 का स्क्वायर क्या निकाला अभी आपने यहाँ 3√3 का स्क्वायर आएगा 27 तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 3 जा 6 6 4 जा 24 और साथ में √3 और नीचे क्या रहा आपके पास देखो 9 3 जा 27 माइनस 16 तो यहाँ पर देखो मैं लिख देता हूँ 27 माइनस 16 क्या आएगा 1 1 11 तो नीचे क्या आ गया 11 तो मींस तो देखना 27 प्लस 16 43 43 माइनस 24√3 अपॉन 11 और ये आपका थर्ड क्वेश्चन का क्या होगा आंसर ठीक है बुक वाला मैच कर लेना ओके कोई डाउट नहीं सो नेक्स्ट इन दिस क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर आपको जो है इसको इवेल्यूएट करना है और इवेल्यूएट करने के बाद बताना है कि इसकी जो वैल्यू है इनमें से किसके इक्वल होगी यस और नो तो देखते हैं सो 2 इंटू 1030 विल बी 1/√3 यस और नो अपॉन 1 प्लस 10
tan30 की वैल्यू 1/√3 और 1/√3 का स्क्वायर। आप में से चाहे तो कोई ऐसे भी कर सकता है कि सर एक आइडेंटिटी होती है क्या, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सर क्या मैं इसको 1 + tan स्क्वायर 30 की जगह सेक स्क्वायर 30 भी लिख सकता हूँ क्या? हाँ, आप चाहो तो सेक स्क्वायर 30 भी लिख सकते हो। सो 2 बन जा 2/√3 अपॉन, सो देखिए 1 + 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3। सो नीचे वाले का क्या ले लीजिए, एलसीएम। अभी आपके पास ऊपर क्या आ रहा है 2/√3 एंड नीचे वाले का जो एलसीएम है वो क्या होगा 3। 3 डिवाइडेड बाई 1, 3 3 इंटू 1 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 1 1 इंटू 1 1। आपको पहले भी बताया था सबसे ऊपर वाले वैल्यू को सबसे नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो 2 3 जा 2 इंटू 3 इक्वल्स टू, नेक्स्ट √3, देखो 3 + 1 4, सो 4 इंटू √3 से सो नो। सो यहाँ पे देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो क्या हुआ 3 अपॉन 2√3। बोला सर इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन आपको पता है आप इस √3 को क्या एक्सप्लेन कर सकते हो? सो √3 इंटू √3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3 ही आएगा, और नीचे क्या है 2√3। सो √3 से √3 क्या हो गया कैंसिल आउट, और आपके पास जो वैल्यू आई है वो आई है √3/2। अब आपको देखना है सर यहाँ तो कोई वैल्यू ही गिवन नहीं है, तो बताना sin30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, मीन्स ये इसका आंसर नहीं है। tan60 की वैल्यू क्या होती है √3, मीन्स ये इसका आंसर नहीं है। cos60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, मीन्स ये इसका आंसर नहीं है। sin60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, इसका मीन्स फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो गया आंसर हो गया। कोई डाउट? ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन 1 - tan स्क्वायर 45। तो देखना आप कि 1 की जगह 1 - tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, और उसका क्या है स्क्वायर अपॉन, नीचे जो है आपने बोला सर यहाँ पे तो आपने ऐसा नहीं किया, सर इसको ऐसे सोल्व कीजिए। सो 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री विल बी सेक स्क्वायर 45। कोई डाउट है? और बोला सर ऐसे नहीं करे तो मत करो, अगर आप ऐसे नहीं करो तो वापस अपनी तरह कर लो, पहले जैसे किया था 1 + tan 45 की वैल्यू 1 और इसका स्क्वायर। तो देखना 1 की जगह 1 - 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 + 1, तो 1 - 1 क्या होगा 0, 0 डिवाइडेड बाई 1 + 1 2, और 0 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 0। आंसर सर कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन देखो tan 90 होता है नॉट डिफाइंड, ये इसका ऑप्शन ही नहीं होगा। यस और नो? ये 1 इसका नहीं होगा। sin 45 होता है 1/√2, ये इसका नहीं होगा, इसका मीन्स इसका आंसर क्या होगा डी 0। यस और नो? नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a। ये बोल रहा है कि ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू की क्या होगी इक्वल होगी, कब? ट्रू व्हेन a, जब आप a की वैल्यू क्या लोगे। सो रिमेंबर वन थिंग, पहली बात जब आप 11th क्लास में जाओगे तो आप पढ़ोगे कि sin 2a जो है वो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2 sin a इंटू cos a, 2 sin a इंटू cos a। इसका मतलब एक बात तो पता लग गई कि sin 2a जो है इक्वल्स टू 2 sin a हो रहा है, तो ये फॉर्मूला कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट कब होगा जब इसके साथ और क्या है cos a। अब इनमें से आपको देखना है कि इसको और इसको, इन दोनों को कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखना अगर आप पहली वैल्यू ट्राई करते हो तो जब आपके पास एंगल ए है उसकी जगह आप 0 पुट कीजिए। सो साइन इंटू 2 इंटू 0, कोई डाउट है, इक्वल्स टू 2 साइन 0। तो बताओ 2 इंटू 0 क्या होगा 0। सो साइन 0 इक्वल्स टू 2 साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0 इंटू 2 इंटू 0 0। इसका मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे की क्या आ गई इक्वल आ गई। मीन्स ये है कि इसका जो आंसर है वो कौन होगा 0 डिग्री की साइन 2a जो है वो 2 साइन के इक्वल कब होगा जब a की वैल्यू क्या ले ली जाए 0। अदरवाइज ये इसके इक्वल कभी भी नहीं होगा, क्योंकि साइन 2a जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन a इंटू cos a। कोई डाउट है? ओके, नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन 2 इंटू tan 30, तो tan 30 की वैल्यू आप सबको पता होगी 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 30 की वैल्यू है 1/√3, तो इसका स्क्वायर। कोई डाउट है? नहीं, 2 1 जा 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। कोई डाउट नहीं है? सो नेक्स्ट 2/√3 अपॉन
1 माइनस इसका एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 3 डिवाइडेड बाई 1 3 एंड 3 इंटू 1 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 1 1 इंटू 1 1। सो क्या बच गया आपके पास 2 बाई रूट 3 अपॉन 3 माइनस 1 2 बाई 3। से सुनो सबसे ऊपर वाले को सबसे नीचे वाले से बीच वाले को बीच वाले से मल्टीप्लाई कीजिए आप। तो देखिए 2 इंटू 3 अपॉन रूट 3 इंटू 2। कोई डाउट है? सो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। सर पहले भी मुझे याद है आपने क्या किया था 3 को क्या लिखा था रूट 3 इंटू रूट 3 और नीचे क्या आ रहा है सर रूट 3। तो रूट 3 को रूट 3 से क्या कर दिया था कट कर दिया था। आंसर क्या आ गया रूट 3 आंसर। लेकिन सर यहाँ पर तो रूट 3 कोई ऑप्शन ही गिवन ही नहीं है। हाँ तो देखो साइन 60 जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 मेन से इसका ऑप्शन नहीं है। साइन 60 क्या होता है रूट 3/2 लेकिन अपने पास तो रूट 3 है ये इसका आंसर नहीं है। साइन 30 क्या होता है 1/2 नहीं है। टेन 60 इसका क्या है करेक्ट आंसर की टेन 60 जो होता है वो क्या होता है रूट 3। So last two questions of exercise 8.2 question number 3 and question number 4. So सुनना देखो what we have given in this question number 3 we have given that 10a plus b equals to root 3 and 10a minus b equals to 1 by root 3 and the most important condition that we have given is that a plus b का जो सम है is greater than 0 degree and less than or equals to 90 degree मीन जब आप a और b को ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और साथ साथ ही या तो 90 के इक्वल है या फिर 90 से कैसी है छोटी। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कि आपके पास जो है वो a की वैल्यू b से हमेशा क्या आनी चाहिए बड़ी बिकॉज a इज ग्रेटर देन b। सो व्हाट वी हैव गिवन दैट 10a plus b equals to root 3 says or no and in the next condition what we have given 10a minus b equals to 1 by root 3। सो मुझे एक बात बताना ये बोल रहा है कि ये वाली जो टर्म है वो इसके क्या है इक्वल है। तो मुझे एक बात बताओ अगर इधर 10 है तो इधर भी क्या होना चाहिए 10 से सुनो तभी तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे इक्वल होंगे। तो देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 10a plus b equals to ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है 1060 की। सो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1060। अब आप कंपेयर करोगे बाय कंपेरिजन कि जब आप कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ दिखेगा क्या दिखेगा सर यहाँ 10 है और यहाँ पर भी क्या है 10। ये बोल रहा है ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के क्या है इक्वल है। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एक दूसरे के इक्वल कब होंगी यहाँ 10 की जगह 10 है लेकिन अगर a प्लस बी की जगह मैं क्या रख दूं 60 रख दूं तो इधर भी 1060 और इधर भी 1060। इसका मीन्स है कि a प्लस जो b है उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 60 आनी चाहिए। a प्लस बी जो है उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 60 आनी चाहिए तभी ये जो है इक्वेशन फर्स्ट ये वाली टर्म इस टर्म की क्या होगी इक्वल क्योंकि 10 की जगह 10 अगर a प्लस बी की जगह क्या रख देंगे आप 60 रख देंगे क्या रख देंगे 60 तो इधर भी 1060 और इधर भी 1060 तो मैं समझ गया कि a प्लस बी की वैल्यू क्या है 60 डिग्री। तो नेक्स्ट सेम ऐसे इधर 10 है तो इधर भी 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 10 a माइनस बी इक्वल्स टू 10 1 बाई रूट 3 जो है वो 1030 की वैल्यू है किसकी वैल्यू है 1030 की। अब देखो इधर 10 है और इधर भी क्या है 10 ये बोल रहा है कि ये 1030 और इधर ये जो है ये एक दूसरे के इक्वल है। तो इक्वल कब होंगे इधर 10 है तो इधर भी 10 है। अगर आप a माइनस बी की जगह क्या रख दो 30 रख दो तो इधर भी 10 और इसकी जगह 30 इक्वल्स टू 10 30। तो मैं यहाँ समझ गया बाय कंपैरिजन क्या बाय कंपैरिजन मैं ये समझा कि 10 की जगह 10 a माइनस बी की जगह अगर आप 30 रख दोगे तो ये दोनों एक दूसरे के क्या आ जाएंगे इक्वल आ जाएंगे। यस और नो। अब आपको देखो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन 1 एंड 2 यूजिंग एलिमिनेशन मेथड आपने चैप्टर 3 में यूज किया होगा एलिमिनेशन मेथड। कौन सा होता है एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेशन मेथड कौन सा एलिमिनेशन मेथड मींस इनमें से किसी एक वेरिएबल को हटा देना। तो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। आप इन दोनों को क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए कीजिए ऐड a प्लस a 2a b माइनस b कैंसिल आउट एंड इक्वल्स टू 60 प्लस 30 90 डिग्री से यस और नो। अब यहाँ पर ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा ट्रांसपोजिंग करेंगे तो डिवाइड सो a इक्वल्स टू 90 बाय 2। सो a की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 45 डिग्री। लेकिन सर यहाँ तो बोला गया था कि a और b दो वैल्यूज है आपने तो a की निकाली। हाँ आप इस a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सो पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन
फर्स्ट और सेकंड किसी में भी पुट कर दीजिए, मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस बी, तो एक ही जगह तो क्या रख देंगे 45, सो 45 डिग्री प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। से सुनो, ये प्लस का 45 ट्रांसपोजिंग करेंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, सो b इक्वल्स टू 60 माइनस 45, और 60 माइनस 45 क्या होगा बोलो, अरे 15 डिग्री, कितना 15। अब यहां से आप देख सकते हो कि जो a है वो ग्रेटर देन क्या आ रहा है, b ही आ रहा है, कि a की जो वैल्यू है वो 45 है और b की जो वैल्यू क्या है 15, और आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 60। तो देखो 45 प्लस 15, इधर भी 60 और इधर भी 60, 45 माइनस 15, इधर 30 और इधर भी 30 मींस, और आप इन दोनों को ऐड करके देखिए 45 प्लस 15 60, तो जो 60 है वो 0 से बड़ा है और 90 से क्या है छोटा। तो इन दोनों ही कंडीशन को अपना आंसर क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इन द नेक्स्ट स्टेट whether the following are true or false, justify your answer, कि आपको बताना है कि ये जो है ये ट्रू है या फॉल्स है। सो देखना, इन द फर्स्ट साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी, बोले सर ये तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में ही एक्सप्लेन किया था कि क्या, कि साइन ए प्लस बी जो होता है ना उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाँ बोलो, कि साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, कि अगर साइन ए प्लस बी है तो उसका फॉर्मूला ये होता है, लेकिन सर यहाँ तो क्या दे रखा है साइन ए प्लस साइन बी, तो इसका मतलब क्या ये बात सही है क्या, नहीं ये बात सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, मींस आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स। Therefore, the following statement is false, and the reason is because sin A plus B equals to sin A cos B plus cos A sin B, and the value of sin theta increases as theta increase। ये बोल रहा है कि sin theta की वैल्यू एंगल इंक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज होती है। तो देखते हैं, आपको पता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। मैं sin थीटा के लिए वैल्यू लिख रहा हूँ, sin 0 की वैल्यू साइन थीटा के, तो 0 की 0, 30 की 1/2, इसकी 1/√2 एंड √3/2 एंड 1। तो देखो आप जब 0 पे थे तो वैल्यू भी क्या थी 0, जैसे ही आप 0 से 30 डिग्री के मूव किया तो आपके पास जो वैल्यू भी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। पहले 0 थी फिर आगे क्या होगी 1/2। जैसे ही आप 0 से 45 की तरफ इंक्रीज हो रहे हो वैल्यू और इंक्रीज हो रही है, और लास्ट में आप 0 से 90 डिग्री एंगल पर गए, एंगल क्या था 0, और 0 डिग्री से कहां पर गए 90 डिग्री पर, तो वैल्यू भी जो है वो 0 से कहां पे आ गई 1 पे आ गई। कहां पे आ गई 0 से 1 पे, मींस जैसे जैसे आपने अपना थीटा इंक्रीज किया, एंगल इंक्रीज किया, वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी क्या होती चली गई, इंक्रीज होती चली गई। मींस आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है, कि साइन थीटा की वैल्यू जो है वो थीटा इंक्रीज होने के साथ साथ साइन थीटा भी इंक्रीज होता है। कि 0 डिग्री था तो वैल्यू 0 थी, 30 डिग्री था तो 1/2 था, और ऐसे 0 डिग्री से 90 डिग्री पर गए तो इसकी जो वैल्यू है साइन 90 की वो भी क्या होगी 1। तो 0 से कहां पहुंच गए 1, इट मींस कौन सा ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े की ओर। इसका मींस वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कब, जब क्या इंक्रीज हो रहा है, थीटा। क्या इंक्रीज हो रहा है, थीटा, एंगल इंक्रीज हो रहा है। सो इट मींस सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। फर्स्ट क्या था, फॉल्स। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज, बोल रहा है कि कोस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो देखते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, किसके लिए वैल्यूज निकाल रहे हैं, कोस थीटा के लिए। कोस 0 की वैल्यू, इसका रिवर्स करके लिखना है, लिख दो 1√3/2, 1/√2 एंड 1/2 और 0। तो देखो जैसे आपके पास स्टार्टिंग में 0 डिग्री था, आपके पास वैल्यू क्या थी 1 थी, लेकिन जैसे आप 0 डिग्री से किधर गए 90 डिग्री की तरफ गए, आपके पास वैल्यू भी क्या आ गई 1 से 0। तो ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, मींस डिसेंडिंग ऑर्डर की वैल्यू जो है वो स्टार्टिंग में तो बड़ी थी, लेकिन जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज हुई 0 से 30 पे गए, 45 पे गए, तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या होने लग गई, डिक्रीज होने लग गई। तो कोस थीटा में इसका उल्टा होता है कि अगर एंगल इंक्रीज होगा तो कोस थीटा की जो वैल्यूज हैं वो भी क्या होंगी, वो क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। क्या होंगी, एंगल इंक्रीज होगा, कोस थीटा की वैल्यूज क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। क्या होंगी, डिक्रीज। तो इसका मींस जो आपका थर्ड है, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज, सही है क्या, नहीं, ये क्या है फॉल्स। कि जब आप कोस थीटा की वैल्यू जो है ना वो डिक्रीज होती है, क्या होती है, डिक्रीज होती है। कब, जब थीटा क्या होता है, इंक्रीज होता है।
नेक्स्ट ये बोल रहा है साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये बोल रहा है कि थीटा की वैल्यू जब 0 होगी तब भी दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, 30 होगी तब भी, 45 होगी तब भी। तो देखो जब आप साइन 0 की वैल्यू जो है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू इधर 0 है लेकिन कोस 0 की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब 0 डिग्री पर तो इक्वल नहीं है। फिर साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2, और कोस 30 की वैल्यू √3/2, मीन्स साइन 30 पर भी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। कौन दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, कोस 30 और साइन 30 एक दूसरे के इक्वल नहीं है। लेकिन ये बोल रहा है फॉर ऑल वैल्यूज, तो ऑल वैल्यूज कहाँ आई, देखो साइन 45 पे क्या आ रहा है 1/√2, कोस 45 पे क्या आ रहा है 1/√2। तो आप बोलोगे सर साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या आ रहा है, कोस 45 डिग्री, दोनों एक दूसरे के इक्वल ही तो है सर। लेकिन इसने क्या बोला, फॉर ऑल वैल्यूज, कि सभी वैल्यूज पर ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, जबकि ये तो सभी वैल्यूज पर इक्वल नहीं है, ये तो केवल किस पर इक्वल है, 45 डिग्री पर दोनों एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, इक्वल। क्यों, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2, कोस 45 की वैल्यू भी 1/√2, मींस और किसी पर ये इक्वल नहीं है। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है ये कैसा हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0 डिग्री, कि जो कोट है वो 0 डिग्री के लिए क्या है, नॉट डिफाइंड। बोला सर मुझे एक बात याद आ रही है, मैंने बोला क्या, तो बोला सर कोट का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है कोस ए अपॉन साइन ए, कि अगर आप कोस की वैल्यू को साइन के वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोट की। तो यहां मैंने ले रहा हूं 0, ए की जगह क्या ले रहा हूं 0, तो कोट 0 डिग्री इक्वल्स टू कोस 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री, से सुनो। तो कोस 0 डिग्री क्या है, कोस 0 डिग्री जो है वो है आपके पास 1, क्या है 1, एंड अपॉन साइन 0 डिग्री क्या है 0, और 1/0 जो होता है वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड। ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड या फिर अनडिफाइंड भी बोल सकते हो। इसका मीन्स जो है वो कोट 0 की वैल्यू क्या आ रही है, नॉट डिफाइंड। और ये क्या बोल रहा है, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0 डिग्री, मीन्स ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू, कि कोट जो है वो 0 डिग्री के लिए क्या होता है, नॉट डिफाइंड। और ये आपकी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट 8.2। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर कमिंग विद द फुल एनर्जी एंड with lots of questions, PYQs and many more things. So be ready. Subscribe this YouTube channel. Be ready all of you. Have a great day and bye.